So hello everyone, myself Kaushik and I'm an aspirant just like you. Today is 29th of March and 2 दिन बाद IBPS is gonna declare the result and जैसे जैसे time बीतता जा रहा है I'm feeling really nervous and anxious. Even though I was confident at the beginning, but day by day it's decreasing drastically. I have 18 marks buffer in mains exam, but still यहाँ पे थोड़ा सा होता है कि होने वाला है कि नहीं. वैकेंसीज बढ़ता भी है और घटता भी है. तो I'm searching for contents in the YouTube that any update or any about vacancies or any other things. So I'm really getting anxious and nervous as the time is passing. If you don't know me, let me tell once again, my name is Kaushik and I'm an aspirant just like you, and I have been preparing for these exams, just RRB, IBPS, SBI. I have been preparing for this kind of exams for the past 3 years, and I'm hoping that this time I'll clear the exam. I'm not hoping actually, I'm very confident. Even when I cleared the prelims, I was so confident that after getting out of the exam hall, I just told that I'm gonna crack these prelims. Let's just wait for the mains. And when I gave the mains exam, at that time also I was so confident that I told them that okay, mains is gonna be over, I can crack the mains, let's just focus on the interview right now. So this time after giving the interview I was confident, and as the time is getting closer and closer for the declaration of the result, I am getting very much nervous. As मैं इंटरव्यू रूम से जब मैं बाहर निकला था तो आई वॉज सो कॉन्फिडेंट दैट मेरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया, इससे अच्छा शायद किसी का नहीं गया. लेकिन अब जब टाइम पास आता जा रहा है ना, आई एम फीलिंग लाइक रियली मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा गया था. लाइक सब लोगों का तो शायद इससे भी अच्छा गया होगा. सिर्फ क्यों फील हो रहा है मुझे, मतलब एस्पिरेंट के मन में क्या क्या होता जाता है एज द टाइम पासेस बाय. So finally it's 1st of April today and it's 10:40 in the morning. Let's go to my IBPS website right now. मेरा सिर्फ पीओ का ही था तो मैं सिर्फ ये पीओ वाला ही देखूंगा. Let's see. What are these vacancies in Secretary Central Bank of India? Really? सिलेक्शन हो गया मेरा एंड स्कोर भी दे दिया है. आई गॉट 36.44 आउट ऑफ 100 इन एस सी कैटेगरी एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. हार्ड वर्क किया है तो होना ही था. सो दैट्स माई फीलिंग राइट नाउ. खुशी जो है ना वो अंदर से आ रही है. क्या होता है, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस इट. आई एम जस्ट एक्यूमुलेटिंग द पावर ऑफ दिस work that I have done, and you can also do it. If I can do it, then you can also do it, isn't it? ऑफिसर हो गए हैं हम. इसको पढ़ो. So if you want to know my story, then जैसा कि मैंने बोला था, before 3 years I was in college, and that time I felt like okay, banking exam is easy and I should be able to crack it. Let's just jump into it. So I started preparing and I didn't take it so seriously. I was taking it very lightly. बाद में कुछ ऐसा हुआ कि I was not able to finish the syllabus and I had to give, and I couldn't answer. Like I remember in RRB clerk I answered 35 or 34, and in PO I couldn't answer that much also. I felt so devastated. Then I consoled myself that I couldn't even finish the syllabus. Let's just wait and see what happens later on. Then SBI came, IBPS came. The IBPS exam was at the very last, and हुआ ऐसा कि I cleared the IBPS prelims and I was so happy about that.
I just cleared the IBPS exam. Like this was my first time attempting this exam and I cleared it. तो मेंस का टाइम आया तो I just gave the mains exam and I didn't study the GK part from the लाइक लोग होता है ना कि 3 महीने पहले से 4 महीने पहले से मेंस का एग्ज़ाम प्रिपरेशन शुरू कर देता है, या कोई है कि साइमल्टेनियसली प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का प्रिपरेशन शुरू कर देता है। लेकिन मेरा ऐसा नहीं था, मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मैंने सिर्फ 1 महीना पहले से जीके पढ़ना शुरू कर दिया था। और मेरा ऐसा है कि मेरे लर्निंग कैपेबिलिटीज़ बहुत ही कम है। I cannot remember everything even if I read the GK. So ऐसा हुआ कि I was reading it but I was forgetting at the end. So before the exam, just before the exam, I found out that I forgot everything. So within 7 days I reversed everything, but of course I could not remember. Exam दिया और एग्ज़ाम का मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि आई वॉज लाइक 50-50 श्योर, लाइक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। एंड मिराकुलसली मेंस क्लियर हो गया था मेरा। आई वॉज सो हैप्पी, सो एक्साइटेड, एंड नाउ ओनली द लास्ट स्टेप। एंड वन मोर थिंग अबाउट मी इज़ आई डोंट इन्वेस्टिगेट सो डीप अबाउट एनी एग्ज़ाम। लाइक लोग होता है ना कि 300 वैकेंसीज है, 3000 वैकेंसीज है, तो मुझे इतना मार्क्स स्कोर करना है अगर मुझे चाहिए तो। ये सब मैं कभी नहीं किया। इवन मुझे पता भी नहीं था, जब तक मेरा इंटरव्यू नहीं हो गया था IBPS का इस बार, मुझे पता भी नहीं था वैकेंसीज़ कितना है। क्योंकि जब भी मुझे यह पता चलता है ना तो मेरे दिमाग में फालतू का शुरू हो जाता है कि अरे यार सिर्फ 5000 ही तो वैकेंसी है, क्या गारंटी कि मैं कर पाऊँगा। पूरा इंडिया के साथ मेरा टक्कर है, पूरा इंडिया में तो लाख स्टूडेंट्स हैं, मैं कैसे पास कर सकूँगा ये। तो मेरे दिमाग में ऐसा प्रोक्रास्टिनेशन होता रहता है। सो व्हाट आई डू इज़ आई डोंट इन्वेस्टिगेट अबाउट दैट, आई डोंट केयर अबाउट दैट, बिकॉज वैकेंसीज तो ऐसा होता है ना कि बढ़ता रहता है घटता रहता है, कुछ ऐसा होता रहता है। तो आई डोंट केयर अबाउट दैम, आई जस्ट नीड टू केयर अबाउट माई सेल्फ। लाइक मैं खुद कितना कर सकता हूँ, what is my status, can I do it? If my heart tells yeah you can do it, then it's okay. And this is what I applied this time. If my heart was telling me that you can do it, and I was sure about that, that's why I was going ahead. क्या बोल रहा था कि 2021 का बात कर रहा हूँ, जब मैं पहली बार दिया था। तो जब उस टाइम के दिया था तो मुझे पता नहीं था कि मेंस से बहुत 10-15 मार्क्स बफर होना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था। मैं पूरा खुश, मतलब पूरा जोश के साथ इंटरव्यू देने गया और इंटरव्यू में जाके ऐसा हो रहा था। तो मेरा इंटरव्यू बहुत ही ख़राब गया, बहुत। फिर भी जब मेरा रिज़ल्ट आया तब मैंने देखा कि मेरा जो स्कोर है वो 58 है। आई डिडंट गेट द सिलेक्शन ऑफ कोर्स। तो दिस वाज माई स्टोरी फॉर द फर्स्ट ईयर। देन सेकेंड ईयर में मेरा सारा प्रीलिम्स क्लियर हो रहा था, मोटा सारा। और थर्ड ईयर में अभी का मैंने RRB का फॉर्म ही फिलअप करना, मतलब कि पर्सनल इश्यूज़ के कारण मैं नहीं कर पाया, और IBPS और SBI बच गया। तो IBPS का PO मैंने टारगेट किया कि इसको मैंने क्रैक करना है, ठीक है। क्योंकि फॉर मी SBI PO इज़ लिटिल बिट टफ फॉर मी, दिस इज़ माई कैलकुलेशन फॉर मी। सो मैंने IBPS PO को टारगेट किया और उसके लिए ही पढ़ा। सो कैसे पढ़ा ये शायद और एक वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर इसमें ही इंक्लूड कर लूँगा ना बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। सो व्हाट्स द मोटिवेशन फॉर मेकिंग दिस वीडियो इज़ इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट जस्ट लाइक मी, देन यू डोंट नीड टू गिव अप। बिकॉज ऐसा होता है कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, एंड देन यू गिव अप। लेकिन यू डोंट नो दैट इन 6th year यू आर गोना गेट द सिलेक्शन। So never give up on your selection, and not only bank exams, give every exams, क्योंकि तुम्हें भी नहीं पता कि तुम्हारा कौन सा वाला में हो जाएगा। एंड एग्ज़ाम देते देते ना एक एक्सपीरियंस आ जाता है कि इसमें इतना अटेम्प्ट करना है, एक स्ट्रेटेजी बन जाता है। सो यू आर गोना गो अकॉर्डिंग टू दैट। सो नेवर गिव अप।